I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting snow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off on me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains of past. And you believe in what you got, it was built to last. Now that I've been through hell, I've never got anyone's help. I don't do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent, mental health is confident, street kids are modest, and that's for me to take away. I could put it in million dollars, but instead I say something not illogical, something not aesthetical. Grab it on and logical, make yourself unstoppable, be irresponsible, but you're always possible. If you just believe, we'd be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several pages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. और वो सभी को मिलती थी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. और दोनों को छात्रवृत्ति मिलती है। वो अच्छे बच्चे होते हैं। वो कोचिंग का खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता है। एक होती है कारगिल युद्ध में जो शहीद हो जाते हैं उनके बच्चे होते हैं, उनको भी छात्रवृत्ति मिलती है। और आपको पता होगा इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार मिलता है। और कक्षा 8 और 10 और 12 यानी बोर्ड की परीक्षाओं में जो अच्छे नंबर लाती है, जिला स्तर पर प्रथम आती है, ऐसे बच्चियों को कक्षा 8 में 40,000 रुपये, कक्षा 10 में 75,000 रुपये और कक्षा 12 में 1 लाख रुपए मिलते हैं। राजस्थान सरकार टेबलेट या उनको लैपटॉप कर सकते हैं, वो भी उपलब्ध करवाना। यदि 75% ज्यादा नंबर आते हैं ऐसे बच्चों को वो भी दे। 11वीं 12वीं में यदि 75% ज्यादा अंक लाते तो 3-3 हजार रुपये मिलते, यही मिलता है। और एक ही बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो कक्षा 12 में 75% से ज्यादा अंक लाते हैं उनको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ हमको लेना चाहिए, पर कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? जिनको जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी देना और उसका लाभ दिलाना। सरकार की योजनाएं तो हैं लेकिन कई को जानकारी नहीं है। तो हम पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, हमारे मोहल्ले में है कोई इस प्रकार का छात्र छात्रा जो गरीब है इसका लाभ नहीं लेते हैं तो उसको लाभ दिलाना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि फॉर्म कहाँ भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या है, ये सब की जानकारी
आपको देना चाहिए, क्योंकि इससे जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक अभाव के कारण से आगे नहीं पढ़ पाते, वो भी पढ़ सकते, ठीक है ना। तो आप लोग जानकारी दोगे। तो कितनी प्रकार की है वो हो गई छात्रवृत्ति? पूर्व मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हो गई। एक तो ये है जो SC, ST, OBC सभी के लिए ये छात्रवृत्ति है। दूसरा, इसके अतिरिक्त कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए उनके बच्चे हैं, उनको भी छात्रवृत्ति मिलती है। तीसरी है जो श्रमिक हैं, मजदूरी करते हैं और कम से कम 90 दिन साल में मजदूरी करते हैं, और जिनका लेखा जोखा यानी रखते हैं और वो प्रमाण पत्र लेकर के श्रमिक विभाग में जमा करवाते हैं, तो उनकी श्रमिक डायरी बनती है। जिसके पास श्रमिक डायरी होती है वो बेटी को, यदि वो 18 साल की हो जाती है तो 75,000 रुपये उनको मिलते हैं। ये है ना। गार्गी पुरस्कार का तो आपको पता है ही सही। बालिका प्रोत्साहन योजना जो छात्र हुआ है, और 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही सभी बेटियों को साइकिल मिलती है, और छात्रों को भी साइकिल मिलती है, परंतु वह घुमंतु जाति के होना चाहिए, उनको मिलती है। एक टैबलेट भी मिलता है। कब मिलता है टैबलेट? जो 75% अंक आते हैं वो मिलता है, ठीक है ना। तो इन सब का आपको अध्ययन करना, और हमारे जो संपर्क में छात्र छात्राएं आती है, जो आपको लगता है कि गरीब है, इसकी पात्रता रखते लेने की, उसकी जानकारी सबको देना चाहिए। आपको मिलती कि नहीं मिलती स्कॉलरशिप? साइकिल मिली आपको, और टैबलेट भी मिला क्या आपको? मिला। और इस श्रमिकों की छात्रवृत्ति मिलती किसी को? नहीं। एक छात्रवृत्ति और है जो कक्षा 1 से मिलती है, वे स्वच्छ कार बंधुओं के लिए जो सफाई का काम करते हैं, उनको स्वच्छ कार बंधु या सफाई में कार्यरत जो लोगों के बच्चे होते हैं, उनको भी ये छात्रवृत्ति मिलती है। तो सारी छात्रवृत्तियों की जानकारी हमको होना चाहिए ताकि उसका लाभ ले सके और अपने मिलने वालों को, संपर्कित को हम लाभ दिला सके, ठीक है ना। और कोई पूछना है छात्रवृत्ति के बारे में आपसे? आपको क्या और किसी प्रकार के एक लाभ के बारे में मैंने नहीं बताया जो आप सब जानते हैं? निःशुल्क यूनिफॉर्म भी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? हाँ। और निःशुल्क भोजन भी मिलता है, जिसको कहते हैं मिड डे मील। वो चखा आपने? खाया? पढ़ाई वढ़ाई ठीक करो भाई। ये जो ना 50%, 60% नंबर ज्यादा नहीं होते। आजकल कंपटीशन का जमाना, आगे बढ़ने के लिए बहुत कंपटीशन करना पड़ता है, अच्छे नंबर लाना पड़ता है आजकल। क्योंकि 20% 17 अंक के मिल जाते ना, कि बच्चे सोचते शायद मेरे इतने नंबर आए, इतना इंटेलिजेंट हो। कोई इंटेलिजेंट नहीं, क्योंकि वहां 20 आ गए, इधर 13 आ गए, पास हो गए। फेल के नंबर पे पास जाते बच्चे तो। पर हमने अपनी बार कह दिया कि बच्चे तो पास हो जाएंगे लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे, है ना। ये अपने गुरुजनों को भी कह दिया करो, तो ठीक ठीक पढ़ाओ गुरुजी, नहीं तो पता नहीं कहाँ चले जाओ, फिर अगले साल मिलोगे कि नहीं मिलोगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी भी दी, और हमने भी आपको छोटी थोड़ी बहुत जानकारी और दी। तो दोनों को आपस में जानकारी मिला करके सबको अपन को छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हो गई। अब इसका लाभ हम आम बच्चों को भी दिलाएंगे।